Hello children, DAV class 4 science chapter number 4 plant around us. We read this chapter and try to understand the explanation of this chapter. What is in chapter? Okay, so let's start reading. We see plant growing at different places such as plains, desert, hills and even in water. हमने plants को grow करते हुए अलग अलग जगहों पे देखा होगा. कहाँ कहाँ? Plains, desert, hill and water. Now there is an activity. Use the help box to complete where the following trees grow. Okay, let's see. So this is the help box and these are the questions. The first is pine tree are found on hill, cactus is found on desert, neem and banyan trees are found in plains, lotus and water lily are found in water. So all clear? Now, plant growing at different places are different in appearance and structure. Let us find out how plants found at different place differ from one another. Plants जो है different जगह पे मिलता है, right? और उनका appearance means उनका look, उनका structure, the way they grow. उनका जैसे किसी की बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वैसे प्लांट के भी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं. तो इस चैप्टर में हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे वो प्लांट्स मिलते हैं और वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, राइट? ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो दिस इज द नेक्स्ट पेज. अ टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रो ऑन लैंड. सो टेरेस्ट्रियल प्लांट लैंड पे ग्रो करता है. Plants which grow on land are called terrestrial plant. There are mainly different types of terrestrial plant. जो plants land पे grow करते हैं उन्हें terrestrial plant कहते हैं और बहुत ही सारे terrestrial plant होते हैं different तरीके के. First we read this do you know box. The place where a living thing lives most comfortably is called habitat. The habitat is thus the natural home of the living things. यहाँ पे बता रहा है कि हैबिटेट क्या होता है. तो हैबिटेट वो जगह होता है जहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग्स कंफर्टेबल वे में रहता है एंड मोस्टली दिस इज नेचर. दिस कंफर्टेबल प्लेस इज प्रोवाइडेड टू दैट लिविंग बीइंग बाय द नेचर से जो प्रोवाइड होता है. लाइक आप देखो कि कुछ एनिमल्स होते हैं वो वाटर में रहते हैं, ठीक है, वो उनका हैबिटेट है. कुछ लैंड पे रहते हैं, वो उनका हैबिटेट है. कुछ दोनों जगह रहते हैं. So habitat is the place where a living being comfortably live. Now, first point is plant of hills. हम अलग अलग तरीके के plants के बारे में पढ़ेंगे. Now, pine, deodar, cedar, spruce and fir are some of the plant which grow on the hills. These are the types of plant which grow on the hill. These plants are tall and straight and generally have a conical shape. ये प्लांट जो होते हैं वो टॉल होते हैं, स्ट्रेट जाते हैं एंड हैव अ कॉनिकल शेप. कोन टाइप का इनका फिगर होता है. दूर से देखोगे लगेगा ट्रायंगल है. These tall, straight and green conical trees make hills appear green and beautiful. And in conical shaped जो trees या plants आप कह सकते हो जो होते हैं वो जो है hills को एक ब्यूटीफुल सीन प्रोवाइड करते हैं, ब्यूटीफुल ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं. देयर लीव्स आर नैरो एंड निडल शेप. उनकी जो लीव्स होती है वो नैरो टाइप की होती है, नैरो लगती है, हाँ, और निडल शेप की होती है, सुई के शेप की होती है. द कॉनिकल शेप ऑफ दीज ट्री डज नॉट अलाउ स्नो टू गेट डिपॉजिटेड ऑन देम. ये जो कॉनिकल शेप होता है, कोन के ऊपर आप कुछ भी रखोगे क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा, राइट? तो ये जो ट्रीज होते हैं अगर इनके ऊपर स्नो पड़ती है, ये हिली एरिया में होते हैं, हिली एरिया में स्नो पड़ते हैं, तो जब इनके ऊपर स्नो पड़ते हैं तो ये जो है स्नो जो होते हैं वो आराम से नीचे गिर जाते हैं और ये ट्रीज जो है फ्री रहते हैं, फ्री फ्रॉम स्नो रहते हैं. नाउ द सेकेंड इज प्लांट ऑफ प्लेन्स. ठीक है, अभी हमने हिल्स के प्लांट्स के बारे में पढ़ा, अब हम प्लेन्स के प्लांट के बारे में पढ़ेंगे. पीपल, banyan, मैंगो, साल, shisham. Some of the plants found in plain, they grow into tree having many branches. ये जो पीपल, banyan, मैंगो, शाल, शीशम होते हैं ये जो प्लांट्स
plants, no, you can say trees. These tree or plant are mainly grow in the plains area. ये plains area में होते हैं and they have many branches, having many branches. उनके बहुत सारे branches होते हैं. Okay, these are the picture of all the kind of trees which is shown in the picture. Now, third category is plant of hots and wet regions. Okay, अभी हमने hills के पढ़े. फर्स्ट हिल्स था, हिल्स में कैसे प्लांट होते हैं. देन हमने पढ़ा प्लेन्स के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द हॉट एंड वेट रीजन. ट्रीज लाइक teak, rubber and coconut are found in a hot and wet region. जहाँ पे गर्मी बहुत होती है और ह्यूमिडिटी, वेट रीजन, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है वो एरिया. These generally having a large number of leaves. इन ये जो प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होती है, ज़्यादा लीव्स होती हैं, बड़ी होती हैं, ज़्यादा लीव्स होती हैं. दे शेड देयर लीव्स ग्रेजुअली. वो आराम से धीरे धीरे अपनी लीव्स को शेड भी करती रहती हैं. शेडिंग मतलब उनको गिराती भी रहती है और न्यू निकलती रहती हैं. हैंस दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्री. इसीलिए इनको एवरग्रीन ट्री कहते हैं. उनकी लीव्स गिरती हैं फिर निकलती हैं. प्लांट्स लाइक पेपर, कॉटन, राइस, बनाना ऑल्सो ग्रो इन अ हॉट एंड वेट रीजन. ये सब भी जो प्लांट्स होते हैं, पेपर, कॉटन, राइस, बनाना, ये सब भी किस रीजन में होते हैं? हॉट एंड वेट रीजन में. ना फोर्थ, प्लांट ऑफ मार्सी एरिया. मैंग्रोव ग्रो इन मार्शल सॉइल्स. मैंग्रोव्स जो होते हैं, मैंग्रोव्स काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं. These plants grow in marshy area. These plants develop special root for breathing. ये जो plants होते हैं इनके special root होते हैं breathing के लिए. As their main underground root do not get sufficient oxygen from the soil. क्या होता है कि ये जो marshy area होती है मतलब mud type की area होती है, तो इनके जो रूट होते हैं, जो इनके मेन रूट अंडरग्राउंड होते हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन फॉर देम. मीन्स वो अपने आप के को ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, उतना उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन अंडरग्राउंड नहीं मिलती है. तो वो क्या करते हैं, वो अपने कुछ रूट्स जो हैं ऊपर भी डेवलप करते हैं. सो पोर्शन ऑफ देयर रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल. कुछ पोर्शंस उनके रूट के जो क्या होते हैं ऊपर आ जाते हैं. अबव द वाटर लेवल से ऊपर आ जाते हैं. ये प्लांट्स वाटर में होते हैं या मडी एरिया में होते हैं. ऊपर आके वो ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एयर, राइट. दीज रूट आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एरियल रूट्स. इनको ब्रीदिंग रूट्स भी कहते हैं और इनको एरियल रूट्स भी कहते हैं. डू यू नो अ मार्श इज़ अ वेरी वेट मडी एरिया ऑन लैंड. देखो आप, मार्श जो होता है वेट और मडी एरिया होता है लैंड का. सो आपको ये याद रखना है ब्रीदिंग रूट्स किस टाइप के प्लांट्स में होते हैं, मर्शी एरिया वाले प्लांट्स में होते हैं. नाउ प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरिया. डेजर्ट में कैसे प्लांट्स होते हैं? कैक्टस ग्रो इन अ डेजर्ट. हाँ, इट कैन सर्वाइव इन सॉयल दैट हैज़ वेरी लिटिल वाटर. कैक्टस जो होता है डेजर्ट में होता है और इसको सर्वाइव करने के लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है. इट हैज़ अ ग्रीन स्टेम एंड वेल डेवलप्ड रूट्स. इसकी स्टेम ग्रीन होती है और इसके रूट जो होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं. द स्टेम स्टोर वाटर. कैक्टस के स्टेम्स जो होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती हैं, स्टोर करके रखती हैं. देयरफॉर इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लैशी. इसीलिए उनका स्टेम जो होती है सॉफ्ट होती है और फ्लैशी होती है. कैक्टस प्लांट हैज़ स्पाइन इंस्टेड ऑफ लीव. कैक्टस प्लांट जो होता है उसमें लीव्स नहीं होती है, उसमें स्पाइन होती है, वो सीधे जाता है. नाउ द नेक्स्ट पेज, एक्वेटिक प्लांट्स. हमने टेरेस्ट्रियल पढ़ा. नाउ एक्वेटिक प्लांट्स. प्लांट ग्रो इन वाटर. ओके, मैनी प्लांट्स ग्रो इन पॉन्ड. बहुत सारे प्लांट्स होते हैं कहाँ पे होते हैं? पॉन्ड्स में होते हैं, लेक्स में होते हैं, एंड अदर वाटर बॉडीज. ठीक है. सच प्लांट्स फाउंड इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट. जो प्लांट पानी में होते हैं उन्हीं को एक्वेटिक प्लांट कहते हैं. एक्वेटिक प्लांट आर ऑफ टू मेन टाइप्स. ये दो मेन टाइप्स के होते हैं. सम ऑफ सच प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर लिव अंडर वाटर. कुछ जो होते हैं पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, कुछ जो होते हैं अंदर होते हैं.
तो पहले हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट. बिफोर दैट वी शुड रीड डू यू नो. एक्वा मीन्स वाटर, ओके, एंड एक्वाटिक मीन्स एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन वाटर. एक्वा मीन्स वाटर हो गया, और जो वाटर के अंदर होता है उसे एक्वाटिक कहते हैं. नाउ we will read this floating aquatic plant, right? These are the again of two types. Floating aquatic plants को भी two parts में divide किया हुआ है. Okay, so first we read about the first division. What is the first division? I mean type. What is the first type? Free floating plant, जो free float होते हैं, freely float होते हैं ऊपर. Okay, water lettuce, hyacinth and duckweed are found floating freely on water. ये जो three हैं, water lettuce and hyacinth और duckweed, ये freely float करते हैं water के पर. They are not attached to any surface. वो surface से attach नहीं होते हैं. They have air filled cavities in their leaves. उनकी जो leaf होती है वो air filled cavities होती हैं. Like cavities means हो गया natural hollow टाइप का उनके अंदर होता है जिससे कि वो ब्रीथ कर लें. These cavity make them light and help them to easily float on the water. जो उनके अंदर वो कैविटी होती है, हॉलो स्पेस होता है, उसी की वजह से वो वाटर पे फ्लोट करते हैं. ओके, सो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स ओवर. नाउ फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट. लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल ऑफ द फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट्स. ओके, वाटर लिली एंड लोटस ये फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट के एग्जाम्पल हैं. सच प्लांट्स आर अटैच टू द पॉन्ड bed and they have stem with holes and their leaves are broad. ये जो होते हैं ये पॉन्ड के बेड से उसके समझ लो आप सरफेस से क्वाइट अटैच्ड होते हैं, ठीक है. और जो इनकी लीव्स होती है, आपने लोटस की लीव देखी होगी, खूब ब्रॉड सी होती है, चौड़ी चौड़ी सी होती है. द स्टेम ऑफ लोटस कॉमनली नोन एज कमल ककड़ी. जो लोटस की स्टेम जो होती है ना वो लंबी लंबी सी होती है, सो उसको कमल ककड़ी कहते हैं. हाँ, और इज़ ईटन एज अ वेजिटेबल. और कमल ककड़ी की सब्जी बनती है, हम वेजिटेबल की तरह उसको खाते भी हैं. नाउ अंडर वाटर प्लांट. सो व्हाट इज इन इट? हाइड्रिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो अंडर वाटर. हाइड्रिला एक ऐसा एग्जाम्पल है प्लांट का जो अंडर वाटर ग्रो करता है, ठीक है. हम वो प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो वाटर में होते हैं. जैसे एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम. एक्वाटिक प्लांट्स में भी टू कैटेगरी है, फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट, अंडर वाटर प्लांट, ठीक है. अब फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट में भी टू कैटेगरी थी, फ्री फ्लोटिंग एंड फिक्स एक्वाटिक प्लांट. अब हम अंडर वाटर प्लांट पढ़ रहे हैं जिसमें कि हाइड्रिला जो है इज एग्जाम्पल ऑफ दैट. इट हैज़ अ पॉइंटेड एंड स्ट्रेप लाइक लीव्स. ये पॉइंटेड और स्ट्रेप लाइक इसकी लीव होती है. वी विल रीड डू यू नो बॉक्स नाउ. Aquatic plants like hydrilla increase the oxygen content of water and remove carbon dioxide from it. Hydrilla जो होता है वो अंडर वाटर प्लांट होता है, और अंडर वाटर प्लांट होता है ये ऐसा जो ऑक्सीजन को बढ़ाता है, पानी के अंदर के ऑक्सीजन को बढ़ाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करता है, कम करता है. दिस हेल्प इन मेकिंग वाटर सुटेबल ऑफ for fish and other aquatic animal and help them to get enough oxygen. ये जो होता है वाटर को सुटेबल बनाता है. हाँ, ऑक्सीजन देके वाटर में खूब ऑक्सीजन देता है जिससे कि वो फिश और जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके लिए लाइफ को ईजी करता है. कौन? हाइड्रिला. नाउ नेक्स्ट पेज, कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स. ओके, वन डे मोना विजिटेड अ विलेज. She saw some farmer uprooting small plant from their field. ये एक स्टोरी दी हुई है. मोना जो है वो अपने विलेज जाती है, वो देखती है कि कुछ फार्मर जो हैं कुछ प्लांट्स को, छोटे छोटे प्लांट्स को अपरूट कर रहे हैं, मीन्स उसको उखाड़ रहे हैं. सी आस्क्ड हर फादर व्हाई वर दे डूइंग सो. वो अपने पापा से पूछती है वो इन प्लांट्स को क्यों उखाड़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये. हर फादर टोल्ड her that plant likes sugar cane, maize, wheat and rice.
आर ग्रोन इन द वे बाय द फार्मर. ओके. उसके फादर बोलते हैं कि फार्मर जो है ये प्लांट्स, शुगर केन, मेज, वीट, राइस, ये प्लांट्स वो लोग सॉ करते हैं, मतलब उगाते हैं. मीन्स फार्मर उसको उपजाता है, उपजाना हो गया. तो सच प्लांट आर कॉल्ड कल्टिवेटेड प्लांट. जो प्लांट वो लगाते हैं, जिनसे जिनको उनको बाद में यूज़ करते हैं, उन प्लांट्स का वो यूज़ करते हैं. जैसे वीट का प्लांट लगाया, वीट का यूज़ करेंगे. शुगर कैन का लगाया तो शुगर कैन से वो गुड़ और शुगर बनाएंगे. तो दीज आर कल्टिवेटेड प्लांट. बट समटाइम्स अ फ्यू अनडिजायरेबल प्लांट्स ऑल्सो ग्रो अलॉन्ग विद द कल्टिवेटेड प्लांट. फिर क्या होता है कि कल्टिवेटेड प्लांट के संग जो है कुछ अनडिजायरेबल प्लांट, जो कि नहीं चाहिए होता है, वो प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं. These undesirable plants are called weeds. यही अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो फार्मर लगाते नहीं हैं बट वो खुद से लग जाते हैं. सो उसी को वो उखाड़ रहे हैं, उसी प्लांट्स को वो अपरूट कर रहे हैं. क्यों अपरूट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो वीड्स होते हैं कैन हार्म द ग्रोथ ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स. वो कल्टिवेटेड प्लांट्स के ग्रोथ को हार्म कर सकते हैं. ठीक है. हैंस दे आर रिमूव फ्रॉम द सॉइल. इसलिए उन्हें सॉइल से रिमूव किया जा रहा है. राइट. नाउ लेट अस लर्न हाउ फार्मर ग्रो प्लांट फॉर कल्टिवेशन. अब हम पढ़ेंगे कि फार्मर प्लांट्स को कल्टिवेशन के लिए कैसे ग्रो करते हैं. ओके. दे फर्स्ट प्रिपेयर देयर फील्ड टू शो द सीड्स. पहले वो अपने फील्ड को प्रिपेयर करते हैं बीज को बोने के लिए, शो करने के लिए. फॉर दिस दे फर्स्ट डिग द सॉइल. पहले वो सॉइल को डिग करते हैं और लूज करते हैं. एंड मेक इट सॉफ्ट. उसको लूज करते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं. वो लैंड को सॉफ्ट क्यों करते हैं? क्यों डिग करते हैं? क्योंकि अगर वो सीड डालेंगे तो वो उसी लैंड पे पड़ा रहेगा. लेकिन जब वो सॉफ्ट कर देंगे, उसको लूज कर देंगे, सॉइल को डिग कर देंगे, तो जो सीड होगा वो अंदर चला जाएगा सॉइल के अंदर. दिस इज़ कॉल्ड प्लॉगिंग. ये जो प्रोसेस वो कर रहे हैं, लैंड को लूज कर रहे हैं, सॉफ्ट कर रहे हैं, इसको प्लॉगिंग बोलते हैं. प्लॉगिंग इज डन बाय यूजिंग द प्लॉग विच इज़ एन आयरन स्ट्रक्चर. प्लॉग आप नेट पे सर्च करके देखिएगा प्लॉग कैसा दिखता है. दिस डे प्लॉगिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर. आज के दिनों में प्लॉगिंग कैसे होता है? ट्रैक्टर की हेल्प से होता है. प्लॉगिंग इज फॉलोड बाय स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड्स. प्लॉगिंग के बाद क्या करते हैं? वो सीड स्प्रिंकल करते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड एट रेगुलर डिस्टेंस. ये ज़रूरी होता है कि हम राइट अमाउंट में सीड को डालें और रेगुलर डिस्टेंस पे डालें. एक ही जगह हम पूरा सीड नहीं डाल दें, उसको डिस्टेंस पे डालें. दिस फील्ड इज़ देन वाटर. फिर क्या करते हैं? उस फील्ड में वाटर देते हैं. पहले हमने प्लॉगिंग की, फिर हमने सीड डाला, फिर हम वाटर देंगे. आफ्टर फ्यू डेज स्मॉल प्लांट स्टार्ट स्प्राउटिंग. कुछ दिन के बाद क्या होगा? स्मॉल प्लांट्स जो होंगे स्प्राउट होना स्टार्ट हो जाएंगे. अलॉन्ग विद दिस स्प्राउट्स, उन स्प्राउट्स के संग वीड्स में ऑल्सो अपीयर इन द फील्ड. उस फील्ड में वीड्स भी अपीयर होंगे. ठीक है. द सीड ऑफ वीड्स आर ब्रॉट टू द फील्ड बाय बर्ड्स एंड अदर एनिमल. अब ये जो वीड्स आते हैं, उनके सीड्स कौन लाता है? उनके सीड्स एनिमल और बर्ड्स लाती हैं. वीड्स आर रिमूव्ड सो दैट दे डू नॉट कंज्यूम वाटर एंड फर्टिलाइजर मेंट फॉर मेन क्रॉप्स. अब इन वीड्स को क्यों हटाया जाता है? इन वीड्स को इसलिए हटाया जाता है कि जो भी हम कल्टिवेटेड प्लांट को, जो प्लांट हमने लगाया है, जैसे हमने वीट लगाया है, तो जो भी हम वाटर और फर्टिलाइज़र देंगे वो वीट तो लेगा ही. वीट को कम मिलेगा, उसको 50% वीट्स को भी देना पड़ेगा. इसलिए वीट्स को हटा दिया जाता है कि जो भी हम फर्टिलाइज़र या वाटर दे रहे हैं वो 100% वीट को ही लगे, उसको शेयर करके उसकी ग्रोथ ना कम हो जाए. सो द कल्टिवेटेड प्लांट ग्रो एंड गिव अस द डिज़ायरेबल प्रोडक्ट. और जब हम वीट को 100% वाटर और फर्टिलाइज़र सब देंगे तो वो भी हमें 100% सीड्स देगा ना. तो हमें उसके लिए वीड्स को हटाना पड़ेगा. वीड्स हट जाएंगे तभी उसको 100% सारे फर्टिलाइज़र, वाटर सब कुछ मिलेगा और वो अच्छा ग्रो होगा. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर.
We'll meet in next chapter. Till then, bye.